Sir, you're not audible. Yes, आवाज आ रही है? Okay. Yes, sir. So let's start today's lecture with the MCQ based question. So this is the question. Yes, first the question goes to Samanpreet. Samanpreet, first question try करना. So what is the output of the following loop and range function? Sir, last option. Last option is -2 minus 2, then -3, and then -4. Yes. So and you will get this comma. Yes. Why the first is not the right answer? सर उन्होंने यही बोला है कि डिक्रीमेंट होना चाहिए -1 का, तो -2 -1 इक्वल्स टू -3. सर -2 से स्टार्ट करेगा -4 तक करेगा सर, फिर लास्ट ही आएगा. हाँ ठीक है. This is the starting value, this is the ending value, and this is the increment you have. So -2, then -3, and then -4, and the stop we have to stop it by -5. Okay. So let's इसको try कर लेते हैं, and we now get the answer at the end. As the next question is, I think this question already. Yes, Samardeep, आप करो attempt इसको. If else. Yes. Okay. Yes. Samanpreet, आप बताओ. Samanpreet. I didn't get सर any. ये ऑप्शन ये A option is हाँ, because A is हाँ करो explain. सर उन्होंने बोला है अगर A 0 से बड़ी है, पर A तो 0 ही है, इसलिए ये स्टेटमेंट चलेगी नहीं, सीधा एल्स पे जाएगा. एल्स x = x + 2, x 0 है +2, आंसर 2 ही आ जाएगा. So let's select this option and move to the question number 3. Yes, next is Mr. Harminder Singh. Yes, Mr. Harminder, बेटा कैमरा ऑन कर लो. हरमिंदर सिंह. Yes, attempt the third question. What is the value of x after the following nested loop is executed? सर आपकी स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो रही है. व्यू नहीं हो रही. चलो कोई बात नहीं. Let's. Harshmeet is ready. Harshmeet, are you able to view? No sir, sir black ही आ रहा है. अभी about to share आ रहा है sir. Yes, Samardeep. सर शो तो हो रही है स्क्रीन, उनके नेट इशू होगा. हाँ करो आप attempt question number 3. Yes, Samardeep. सर होगी. It's taken a lot of time. ऐसा कोई अटेम्प्ट करेगा इसको? यस हर्षमीत. सर कर रहे हैं, 1 मिनट बस. अच्छा, टेकिंग टाइम.
Sir, option C. ठीक है, so this is according to Harshmit T. Take the view of someone else. Yes, Mr. Chetan. मेरे को तो 99 लग रहा है। 99 लग रहा है। समरदीप, सर ऑप्शन बी लग रहा है मुझे। ऑप्शन बी। यस। 90। समनप्रीत, फिर मेरे से हुआ ही नहीं है वाला। कोई बात नहीं, ABCD में लेट्स हर्षमीत विल एक्सप्लेन दी आउटपुट ना कैसे आएगी 90। यस हर्षमीत। सर मैंने ऑप्शन सी कहा था 100। 100 बोला है तो Yes, मेरे sir. हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इस कोड को नोट कर लो एंड ट्राई टू रन दिस वन। ये जो आउटर लूप है दिस विल रन 0 to 9 मींस ये 10 बार चलेगी। ये जो आउटर लूप है, इनर लूप चलेगी -1 to -9। ये -10 will not be included, so the inner loop will run 9 times, 9 into 10, so total this x will be having a value 90। 100 नहीं होगी, ठीक है। and Okay, still sir. you can make a try and please try to run this code, ठीक है। स्नैपशॉट ले लो अगर किसी को चाहिए, that is, or you have the website, please go to the website and take the question from that side. Let's move to the question number 4. Yes, this is for Chetan. Chetan. सर 21। Very good. So you have to go for its explanation also. एक मिनट रुकना। Yes, now explain the output of 21, how the 21 is. तो हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू तो 10 है ना, तो जो भी हमारा रिजल्ट नीचे आने वाला है उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो वो आपकी ऑप्शंस में तो सब में 0 दिया, सिर्फ एक में ऐड में 1 दिया हुआ है। एक मिनट। 21 से 1 ऐड हो जाएगा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा ना उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि नीचे एल्स पार्ट भी लगा हुआ है। 4 है ना, 4 लूप है, तो सर मैंने मतलब सोल्व करने की लोड़ ही नहीं, मुझे पता था एल्स में से एक ऐड हो जाना, तो 21 बता दिया। ठीक है, गुड गुड गुड। सो दैट इज दी, चलो चेतन के अकॉर्डिंग वट एवर द ऑप्शन you give me 21, I just select this without discussing too much on this point. Let's move to the next point. Is if -3, what will it will evaluate to true if -3 true ही है ये। Let's move to the question number 6. So yes, who's ready with this one? Harminder. Harminder is not. Yes, Samanpreet, आप करो ट्राई। दो ही ऑप्शन है। Yes, Samanpreet. Yes sir, wait. Yes, Samardeep. सर इसका फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा। पहले वो 10 को दोनों आइटम से मल्टीप्लाई किया, 10 चेयर्स एंड 10 टेबल्स, और उसके बाद वो सेकंड पार्ट को मल्टीप्लाई करेगा दोनों से, यानी कि 20 चेयर्स एंड 20 टेबल्स। ठीक है, बेसिकली इनर एंड आउटर लूप का कंसेप्ट है। पहले आउटर लूप चलेगी, पहले चलेगी 10, तो 10 के लिए ये दोनों बार चलेगा y, तो y में 10 के साथ आ जाएगा चेयर, फिर 10 के पास साथ आ जाएगा टेबल, देन इज 20 के साथ फिर से दिस चेयर एंड टेबल। सो दैट्स आई थिंक इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स select this one and move to the question number 7. Yes, next is Chetan. सोच के बताना इसको। सर सी, थर्ड ऑप्शन, 2 to -4 तक। 2 2 लेके -4 तक माइनस, जाएगा। हाँ -4 तक आएगा।
5 की तो पॉसिबिलिटी नहीं है -5. So next is question number 8. Harshmeet. Harshmeet is there or not? यस सर, देख रहा हूँ सर. सर 99. 99. Why the 99 is the answer? सर x 0 है और हर बार उसमें इंक्रीमेंट 2 का होगा, तो 100 तो हो, जब लूप सारा वर्क करेगा तो जब 99 पर होगा ना x की वैल्यू, जब 2 के होगी तो वो फॉल्स हो जाएगा, तो 100 पर भी नहीं हो सकता और 101 पर नहीं हो सकता. इनफाइनाइट लूप ये है नहीं, तो ये 99 होगा. नहीं देखो, इनिशियली देखो आप, मेरे अकॉर्डिंग ये है 0 है इनिशियल वैल्यू, तो इसमें 2 की इंक्रीमेंट हो रही है, तो और तो इसमें आंसर आ ही नहीं सकता. हाउ द ऑड विल बी आंसर? 2 की इंक्रीमेंट हो रही है हर बार. ठीक है, 2. सर 0 में 2 की इंक्रीमेंट है ना, 1 से नहीं है. हाँ, तो इवन ही आएगा इसका आंसर. ठीक है सर. सर फिर वो सर 100 हो जाएगा. हाँ जी, ये चलेगा. 2 0 2 98. 98 इज लेस देन दिस, तो ये 100 तक चलेगा पूरा. यस सर, 98 लास्ट होगा और 98 में 2 ऐड हो जाएंगे तो 100 ही आएगा. हाँ, 100 आएगी इसकी वैल्यू, और तो आएगा नहीं इस केस में. सो लेट्स सेलेक्ट दी, अभी आंसर इसका वैल्यूड हो जाएगा, दैट इज. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. सो एनीवन हु इज नॉट गेटिंग द क्वेश्चन, चलो ठीक है. यस समनप्रीत, आप करो फिर से अटेम्प्ट. बड़ा इजी है, 2 ही ऑप्शन है आपके पास. फिर इसका फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब वो 0 हो जाएगा तब पास ही कर देगा. ऑन, ओ होगा, ओ नॉट 0. हाँ सॉरी. कोई बात नहीं, कोई बात. ठीक है, सो दैट्स करेक्ट. जब ये ओ होगा तो दैट विल बी नो, पास विल बी एक्टिवेटेड, और दिस कोड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा. इट्स करेक्ट. सो लेट्स सेलेक्ट GHN and then is yes Samarpreet. ऑप्शन है इसका Question number 10. Samarpreet. सर. हाँ जी. सर 9th वाले में आई थिंक सेकंड वाला आएगा. वो पास स्टेटमेंट तो वो रन ही नहीं करेगा ना, क्योंकि एंड में पास है, तो सीधी प्रिंट स्टेटमेंट ही चलेगी. If पास होके भी ये चल जाएगा कोड. हाँ, ये बिकॉज ये प्रिंट इसका पार्ट नहीं है. प्रिंट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस वन. ये इफ कंडीशन में है, ये इफ कंडीशन में सिर्फ पास ही है, तो पास एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल नॉट बी स्किप. पहले इसकी वैल्यू क्या है, जे. सो जे इज नॉट इक्वल टू दिस, कंट्रोल विल कम हियर. जब पास चलेगी तब भी ये चल जाएगी. ठीक है, पास से ये, अगर ये स्टेटमेंट इसका हिस्सा होती तो भी, ये इसमें हमने एल्स वाला केस तो लगाया नहीं है. अगर इसमें एल्स बच्चा यहाँ पे पास कोई काम नहीं, यही है, दैट इज अगर आपने हमारी कंडीशन, समरप्रीत इज राइट, यही आएगा सर. जॉन ही आएगी इसके, क्योंकि पास से इसका इफेक्ट नहीं हो रहा ना. ये स्टेटमेंट तो हर बार एग्जीक्यूट होगी, चाहे पास एग्जीक्यूट हो या ना हो. ठीक है, ये तो हर बार एग्जीक्यूट होगी. अगर पास एग्जीक्यूट भी होगी, नेक्स्ट कंट्रोल यहीं पे आएगा. यस, क्वेश्चन नंबर 10 इज फॉर समरदीप.
सर इसमें मुझे फर्स्ट और सेकंड दोनों सही लग रहे हैं। पहला तो सर पाइथन थर्ड और फोर्थ गलत ही है, क्योंकि फोर्थ में वाइल लूप आना था, फॉर लूप नहीं आना था। और सो फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड सेकंड। we use the loop when we want to perform the a task indefinitely until a particular condition is met. So this is not for basically for loop. ठीक है, अभी इसका आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास। ठीक है, यस, नेक्स्ट इज मिस्टर चेतन। ट्रू ट्रू आएगा इसका। हाँ ठीक है, समथिंग इज नॉन नेगेटिव, यू हैव द वैल्यू एज yes. Next is Mr. Question number 12 goes to Mr. Harshmeet. सर इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। चलो अभी चेक कर लेते हैं। सो मतलब जो कोड दिया है वो काम कैसे कर रहा है भला? यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे इसकी आप वैल्यूज निकालो ना, रेंज फंक्शन कौन सी आएगी, 10, 11, 12, 13। फिर ये आई की वैल्यू है दैट इज इन रेंज 2 to नम, ये बन जाएगी 2 से लेके 9 तक। तो ये 2 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा 0। फिर 3 से डिवाइड होगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। 10 डिवाइडेड बाय 3, तो रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। प्रिंट हो जाएगा हमारे पास नम 10, और ब्रेक से इससे बाहर आ जाएगा कंट्रोल, एंड इट विल गो टू द आउटर वन। फिर 11 हो गया हमारे पास, 11 अगेन डिवाइडेड बाय 2, तो सीधा ही हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो 11 प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल यहाँ से बाहर आ जाएगा। फिर 12 चेक होगा, सो 12 में 12 डिवाइडेड बाय 2, देन 3, देन 4, देन 5। सर एक बात पूछनी थी सर, जैसे यहाँ पे इन्होंने रेंज यूज किया है सेकंड लूप में, तो मतलब 2 से लेकर नम के बीच वाले नंबर्स नहीं यूज करेगा? सर जो आई वाला लूप है ना, उसमें एक ना एक वैल्यू होगी जो हमारा इफ स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगी, और जब वो ब्रेक होगा तो फिर से हम नम वाले लूप में जाएंगे, और फिर हाँ, ऐसे ये करते करते हमारे जो सारे ब्रेक है, वैल्यूज आ जाएंगे। ब्रेक बेसिकली ब्रेक्स दी फ्रॉम द करंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ये करंट ब्लॉक से बाहर निकालेगा, आउटर से बाहर नहीं निकालेगा ये। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यस, किसकी टर्न हुई है अभी? सो दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द अर्लियर क्वेश्चन। यस, समनप्रीत करो आप ट्राई। तो इसका आंसर भी 2 ही है, क्योंकि इफ a मोर देन 0 तो चल जाएगा, लेकिन b 0 से ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, b 0 से कम नहीं है। हाँ जी, फिर तो a ग्रेटर देन वो 5, ये भी नहीं चलेगा, फिर एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। एल्स तो चल ही जाएगा। हाँ, एल्स वाले पार्ट में क्या आएगा, 0 प्लस 3 3,
एंड फिर कंट्रोल यहाँ से बाहर आ जाएगा. सो शुड आई सिलेक्ट 3? Yes, sir. So let's submit this one. So you have number of correct answer is 12, number of zero wrong is 0, number of unanswered, एक क्वेश्चन हमने unanswered छोड़ दिया. Clear? So कौन सा हमने unanswered छोड़ा? सर ऊपर रह गया शायद, जो 99 वाला था ना, 3 ऑप्शंस. कहाँ पे रह गया? एट्थ भी हो गया, सेवंथ हो गया, सिक्स्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया. सर ये देखो ना, क्वेश्चन वाज अनआंसर्ड. चलो छोड़ो, कोई बात, ठीक है. सो यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस. सिमिलरली यू कैन ट्राई इट आउट विद द इनपुट आउटपुट. एक आधा क्वेश्चन हम यहाँ से ट्राई कर लेते हैं विद द ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस. हाँ जी. सर थर्ड लूप की वर्किंग बताना एक बार, थर्ड क्वेश्चन में तो. थर्ड क्वेश्चन कहाँ चला गया? दिस इज द थर्ड वन. तो थर्ड वन में यही स्किप हुआ था हमारा क्वेश्चन. नॉट. सो लेट अस से ये जो आउटर लूप है, दिस विल रन हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स. इनर लूप है, कितनी बार चलेगी? दिस विल बी फॉर 9 टाइम्स. सो 9 into 10, एक्स की चाहे वैल्यू, ये जो एक एक इंक्रीमेंट होगी 9 into 10, 90 टाइम्स चलेगी. और चलो लेट्स मूव, इसको कॉपी किया, लेट्स मूव टू द अदर साइड. सर इसमें मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जैसे लिखा हुआ है x plus 1 is x plus is equal to 1, इसका मतलब तो ये होता है ना x is equal to x plus 1, तो इसमें हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, वो कंफ्यूजन है. ठीक है, ये देखो इसकी आउटपुट क्या आ रही है? 90 आ रही है. इसमें 90 आ कैसे रही है? ये जैसे जो पहला सीक्वेंस बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से शुरू होगा. अल्टीमेटली ये लूप 10 बार चलेगी. जे की वैल्यू चलेगी -1 से लेके दिस इज फर्स्ट होगी -1, then -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. तो 10 तो इंक्लूड होगा नहीं. तो इनर लूप 9 बार चल रही है, आउटर लूप 10 बार चल रही है. तो 9 into 10 90. सो एक एक x की इंक्रीमेंट हो रही है, 0 से शुरू हो रहा है, 90 बार ये सारा प्रोसेस रिपीट हुआ. तो इसकी आउटपुट ये देखो कैसे आ रही है. दैट इज यू सी हियर द आउटपुट. अगर आप इसकी आउटपुट को और एनालाइज करना चाहते हो, in a better way. समझ आई? इनर लूप चल रही है 9 बार, फिर दूसरी बार कंट्रोल चला गया आउटर लूप में, फिर चली 9 बार, फिर चली 9 बार, ऐसे 10 बार 9 बार इनर लूप चल रही है. क्लियर है अब? यस समनप्रीत. सर Yes, बट sir. इसमें हमारे पास, हाँ जी पूछो. सर हमारे पास रेंज तो 10 तक की थी ना, तो 90 तक कैसे चला गया, ये नहीं समझ आ रहा. ओ भाई आप समझ ही नहीं रहे चीज को. एक्स तो एक काउंटर है, एक्स जस्ट काउंटिंग कर रहा है. ये पहले आई की वैल्यू कितनी सेट होगी? पहले आई की वैल्यू सेट होगी 0. जे की वैल्यू शुरू हो जाएगी -1 से
-9 तक चलेगी। तो ये इनर लूप पहले प्रोसेस के लिए 9 बार चलेगी, फिर दूसरे प्रोसेस के लिए 9 बार चलेगी, फिर तीसरी वैल्यू के लिए 9 बार चलेगी। तो ये देखो इसकी आउटपुट तो लिखी हुई है सारी, एक्स की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से लेके 9 तक फॉर फर्स्ट इनर लूप, फिर 10 से लेके 19 तक दूसरी इनर लूप के लिए, फिर नेक्स्ट 9 बार चलेगी नेक्स्ट थर्ड के लिए, फिर नेक्स्ट 9 बार चलेगी नेक्स्ट के लिए। सो Yes, आप sir. इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखो, देन यू गेट। यस हर्षमीत, क्लियर है? यस सर सर। यही है ना कि जब स्टार्ट होगा तो मतलब कि सर, x जब की वैल्यू एक बार पहले हमारा 0 ही असाइन होगी, कई बार क्या होता है, 1 माइंड इंक्रीमेंट हो जाएगा। doesn't work in that direction, so we get stuck to a question. That's not an issue. So let's look at some other questions. चलो almost time is over, please. ये जो next question है हमारे पास, ये तो if else loop हमने पढ़ी है. So similarly you can try it out with the next options, variables and data types. Just take one question from variable and data type. So what is this question is, ये function के साथ related है. In Python 3, what is the output of range 5? Range 5 भी छोड़ दो, data type is, type will be which type? इस second question में इसकी data type क्या आएगी, इसका आंसर क्या आएगा, integer, list और range? इंटीजर ही आएगा सर। integer ही आएगा। data type तो इसकी integer ही है, just copy this one. सर रेंज आ रही है, रेंज आ रही है, क्लास इसकी रेंज आ रही है, क्लियर? सो दैट इज, हमने करके नहीं देखा जो क्वेश्चन, सो दैट्स हाउ इट इज नॉट टेकिंग द वैल्यूज, इट इज टेकिंग द दिस फंक्शन टाइप ऑफ वैल्यू इज रेंज, फंक्शन को ले रहा है कि जो भी फंक्शन हमने यूज किया, ठीक है? तो अगर हम क्या करेंगे इसके अंदर, चलो छोड़ो इसको, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन आ गया, छोड़ दो इसको। यस, ये क्वेश्चन भी एक आपके एमसीक्यू में आया था ये, ठीक है? इसका आंसर कौन बताएगा? हरी अप एनीवन? तो फोर्थ कौन सा ऑप्शन? फोर्थ फोर्थ? 2 2। हाँ जी फोर्थ? यस हाँ जी यस, फर्स्ट वैल्यू फॉल्स आएगी, 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स, रेस्ट ऑल रिप्रेजेंट्स ट्रू वैल्यू, ठीक है जी। दिस इज अनदर डेंजरस क्वेश्चन। किस तरह का नंबर आएगी इसकी आउटपुट? तो ये ऑप्शन में हेक्सियन और हेक्स क्या दिए गए हैं? हेक्स इज फॉर हेक्साडेसिमल नंबर्स। So this its data type is integer. ये है basically MCQ which are not totally based on the, ये syllabus के according नहीं बने हुए सारे आंसर, ठीक है? So somewhere you will have to struggle it out also. बिल्कुल हमारे syllabus के according नहीं है, because we have not worked on the hexadecimal numbers. सर वैसे वो 0 से मल्टीप्लाई करके हमें 0 ही रिटर्न करेगा, और हाँ 0 जी? एक इंटीजर है। क्या? सर 0 से मल्टीप्लाई करके 0 रिटर्न वो करेगा, 0 से और भैया 0 हमारा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये तो हेक्साडेसिमल नंबर लिखने का मैकेनिज्म है हमारे पास, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा सर। हाँ, ये हेक्साडेसिमल की कोडिंग है ये। FF स्टैंड्स फॉर द हेक्साडेसिमल नंबर, 0x स्टैंड्स, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है? सो ओके सर। you can note down this website pynative.com, and on the left hand side you see here the quiz for beginners, variables and data types, operators and expressions, input output, functions is not in the syllabus, if and else loops, and number quiz, string also. Then the later part you can try the list questions also and dictionary question also, clear? So some or the other day we'll try the next questions, list and the dictionary based questions, क्लियर? और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नोट कर लो, ऑन ट्यूसडे यू विल बी हैविंग ए ऑनलाइन टेस्ट फ्रॉम 4 to 5, ठीक है? अपनी कॉपी पे नोट कर लेना सारे। सर वाइवा के बारे में पूछना था, तो जब वो हाँ। क्लास में लोगे तो आप वाइवा वो समझ लो पहले मेरे पास क्या है, वाइवा कहाँ पे होना है। ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे इज 24th, ठीक है? दैट इज 24th of August, ठीक है?
4 to 5 ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में क्या आएगा, एक 2 प्रोग्राम्स आएंगे आप लोगों को, उसमें से एक प्रोग्राम आप लोगों ने एग्जीक्यूट करना है प्लस उसकी आउटपुट लिखनी है। 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सो इसके मार्क्स बन जाएंगे 10, इसके मार्क्स बन जाएंगे 5, तो टोटल 15 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका 4 to 5 कमिंग ट्यूसडे। प्रोग्राम के लिए आप लोगों ने PDF कोई भी अपनी एक फाइल जिसमें आप कॉपी पे प्रोग्राम बना लो या आप सिस्टम पे प्रोग्राम बना लो, उसकी आउटपुट साथ में लिख के स्नैपशॉट डाल के और उसकी फाइल अपलोड करनी है, और 5 मार्क्स की आप लोगों ने MCQ अटेम्प्ट करने हैं। दीज 2 टास्क यू हैव टू कंप्लीट इन 1 आवर। 4 to 5 कमिंग ट्यूसडे। सर बात पूछनी थी। हाँ जी, दिस इज ये है किस लिए, दिस इज द प्रैक्टिकल कंपोनेंट ऑफ योर हाफ ईयरली एग्जाम। जो हाफ ईयरली की 30 में से मार्क्स लगने हैं, ठीक है, वो इसमें से प्रोरेट होके आपके, अगर आपका स्कोर 14 आ गया किसी का, तो 14 मींस 30 में से वो बन जाएंगे, दे विल बिकम 28। 2 programs from which you have to attempt 1 program and 5 MCQs, 15 marks. This is for your covering your Viva as well as your programming component. हाँ जी, कोई चेतना और कोई क्वेश्चन? हाँ जी पूछो। सर प्रोग्राम कोडिंग करके उसकी आउटपुट ऐसे दोनों उस पे लिखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप कॉपी पे लिखोगे उसको तो आप उसकी आउटपुट जो भी टेंटेटिव आउटपुट आपको लग रही है वो लिखनी है। अगर आप इसको सिस्टम पे रन कर रहे हो, साथ में आउटपुट आएगी, उसको प्रिंट स्क्रीन पे से प्रिंट करके पेंट में डाल के उसकी फाइल बना के अपलोड कर। सर जैसे हमारा स्कूल में जब एग्जाम होगा तो मतलब जब हम प्रोग्राम लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन पेपर में आएंगे, अगर हम थोड़े जो आपने फंक्शन नहीं पढ़ाए वो वाले भी अगर हाफ ईयरली में लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या जो प्रोग्राम के लिए जब हमारे स्कूल एग्जाम होंगे, जब हमें कुछ प्रोग्राम आएंगे लिखने के लिए, तो हम जरूरी थोड़ी ना जो फंक्शन हमने क्लास में स्टडी किए वही यूज करने हैं, हम थोड़े बार वाले फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। जो मर्जी यूज करो, यू आर फ्री टू यूज एनी फंक्शन। आप बस प्रोग्राम चलना चाहिए तेरे अकॉर्डिंग, उसकी आउटपुट आनी चाहिए, रेस्ट देयर इज नो कंडीशन ऑन दिस। ठीक है, ओके जी। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग क्लास।